Hello students, today we are going to discuss mechanism of missile. In the last lecture we discussed about classification of colloid and the conclusion regarding that topic, that is you can give three names of each colloid. That is important. Okay, किसी भी colloid को आप तीन नाम दे सकते हो. One based on physical state of phase and medium. It means 1 out of 8. Another classification that is based on interaction between molecules of phase and medium. In that case, again one name out of 2. And the third one that is based on types of phase. So again third name out of 3. मल्टी, मैक्रो एंड एसोसिएटेड. तो ये टॉपिक आपका परफेक्ट होना चाहिए. मल्टी मीन्स मेटल, नॉन मेटल, पूरा केमिस्ट्री. मैक्रो मीन्स पॉलीमर एंड एसोसिएटेड मीन्स मिसेल, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट. ये क्लियर होना चाहिए. ओके, तो जो एसोसिएटेड था उसमें इंपॉर्टेंट है मिसेल, और ये जो मिसेल है वो डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड है. So we must know how micelle form, that is mechanism, and how that solution is useful to remove stain from the cloth. So today we will discuss about mechanism as well as its application. Okay, so the example, you can take either soap or you can take detergent. But according to our textbook, example that is soap. And soap, that is a salt. Salt of sodium or potassium with long chain of fatty acid. Okay? So simply soap means chemically that is sodium stearate. Sodium stearate, that is a chemical name of soap. मतलब कोई भी कंपनी का सोप हो, बाथिंग सोप नहीं, ठीक है, कपड़े धोने की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, तो उसमें मेजर कंपोनेंट जो है दैट इज सोडियम स्टीरेट. ओके, नाउ इट्स केमिकल फॉर्मूला दैट इज CH3CH2, how many? 16. Then COONA. So this is a formula. Again you can convert in simplified form. This one is alkyl group. Total carbon here 16 and here 17. alkyl group में कार्बन कितने हैं? 17, और हाइड्रोजन है 32 और 3 35, and here COONA. And this part is known as alkyl, and we know alkyl means RCOONA. So this is a simplified chemical formula of sodium stearate, which is important, or you can say major component present in soap. Okay, now if you dissolve this soap or sodium stearate in water, then what happens? This is salt, and if you dissolve any salt in water, so ultimately what happens? Positive ion and negative ion will separate like NaCl. So here positive ion, that is Na plus, and negative ion, that is RCOO minus. Na plus, that is philic, hydrophilic. It means Na plus has strong affinity towards water, or you can say Na plus, that is the polar part, or water also polar, and we know polar dissolve in polar solvent. तो Na plus तो पानी में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब हेटेरोजेनियस सिस्टम में Na plus का कोई रोल नहीं है. Now think about this ion. This is stearate ion. This is sodium stearate. Sodium ion यहाँ से निकल गया, so remaining part is known as stearate ion.
Okay. Now problem that is in stearate iron. Stearate iron has two sections. One that is R, another that is COO minus, and both part cannot separate. दोनों separate नहीं होंगे, दोनों साथ में रहेंगे, and their nature are opposite to each other. It means R that is phobic, hydrophobic, and COO minus that is philic. So in 10th standard, you heard the name R that is like tail and COO minus that is like head, because they look like tail. Okay, we know bond line structure R. So first is CH3, this one. In between, how many CH2? 16, like this. CH2, 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 and finally C double bond O, and here O minus. So this part like tail. So you can say R that is tail and C double minus that is like head. It means stearate iron has two parts, philic and phobic. Philic attract towards water while phobic try to away from water. This is the nature. Clear? Okay. So this is the idea about positive ion and negative ion. Now the first point, that is low concentration. For example, this is water and you have to dissolve sodium stearate or so in less amount. So concentration is very less. Below CMC, critical missile concentration. मतलब अभी मिसाइल फॉर्म नहीं होगा, concentration बहुत low है. So in that case, behavior that is normal. It means Na plus dissolving water, but this part, particular this one, try to away from water. It means stearate ion located at the surface. And the picture like this, surface पे तो होगा, लेकिन tail है, that is try to away from surface like this. तो tail कहाँ रहेगी? सरफेस के बाहर और हेड अंदर एट लो कंसंट्रेशन. घर में चेक मत करना सुबह, मम्मी मुझे टेल देखनी है, हाँ ऐसे. दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, एंड दिस इज नॉट मिसाइल. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन मिसाइल. ओके, एंड फॉर दैट you have to increase concentration and you have to reach up to CMC, that is critical missile concentration. For example, high concentration. Now at high concentration what happen? High concentration means sodium stearate, amount of sodium stearate that is increased. So ultimately stearate ion also increases, and in that case surface has no space. So what happened? Stearate ion enter compulsory into the solution. उसको नीचे आना ही पड़ेगा सॉल्यूशन में. अब स्टीयरेट आयन नीचे आ रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? हेड और टेल. उसको अच्छा नहीं लगेगा. ओके, तो जितनी भी टेल है वो ट्राई क्या करेगी? नजदीक रहने के लिए. और ऐसा कौन सा शेप है जिससे टेल एक दूसरे के नजदीक रह सकती है? एंड दैट इज सर्कल. तो मिसाइल ए है, सर्कुलर फॉर्म में स्टीयरेट आयन अरेंज हो जाता है. सो दिस इज अ वन मिसाइल, दिस इज अनदर मिसाइल, थर्ड मिसाइल लाइक दिस. एंड वी नो each missile contain different number of ions, minimum 100, and this is phase. In between this is water plus Na plus. So this is colloid. All particles that is in suspended boundary present between phase and medium. So this is a colloidal solution. और हमारे घर पे रोज ये सॉल्यूशन बनता है, और एक जो सॉल्यूशन बनेगा वो टेंशन में रहेगा, क्योंकि जो टेल है दैट इज सरफेस एक्टिव हाईली, उसको अच्छा नहीं लगता है.
अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज क्यों हुए स्टीरियोटाइप? तो एक सिंपल लॉजिक है, आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, वहां पे खाना खा रहे, बुफे है सपोज, डिश आपने ले ली, फिर आप जो भी 6-7 लोग हो, आप खड़े रहते हो, वो तो बात सही है, लेकिन आपकी जो खड़े रहने की जो स्टाइल है, या तो फिर आप कैसे खड़े रहते हो, ऐसे सीखो लाइन में ऐसे ऐसे, हाँ कैसे वैसे बातें कर रहे हो, नहीं, सर्कुलर फॉर्म में। हम जब छोटे थे तब भी टीचर ग्राउंड में हमें ले जाते थे, वहां कोई छोटी गेम खेलनी हो तो भी हमें ऐसे बिठाते थे, सर्कुलर। सर्कुलर शेप जो है उससे स्टूडेंट पर्सन कोई भी हो वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, वही लॉजिक यहाँ पे वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसेल का मैकेनिज्म है, तो ये क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल। सो एग्जांपल दैट इज सोडियम स्टीयरेट, दिस इज द फार्मूला, सिंपल क्वेश्चन। Sodium stearate has two part, Na plus and Rc double minus. Rc double minus again has two part, and the nature are opposite. R and C double minus. This is a phobic, this is philic. Tail is पता होना चाहिए. Low concentration है, a simple question. So this is the mechanism. Now the next part, application. Application of missile. और मिसेल की जो एप्लीकेशन है वो दो जगह पे है. One that is a emulsification, जो आपको अभी पढ़ना बाकी है, और सेकंड जो है हाउ टू रिमूव स्टेन और डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ, तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। फॉर एग्जांपल, तो जो नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ कनेक्टेड है दैट इज क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। फॉर एग्जांपल, एक कोई शर्ट है आपका मान लो, और यहाँ पे कोई स्टेन है ऑयल का, ठीक है, एंड वी नो ऑयल दैट इज नॉन पोलर। नाउ टेल मी, दिस इज रिमूव्ड बाय वाटर, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज वाटर इज पोलर एंड स्टेन दैट इज नॉन पोलर, तो वाटर से निकलेगा नहीं। सो यू हैव टू put this cloth into this colloidal solution. So what happened? किसको अच्छा लगेगा? पर्टिकुलर टेल को, क्योंकि टेल है वो फोबिक है और ये भी फोबिक है। तो ये जो ऑयल है, स्टेन जो है दैट इज ऑयल, यहाँ पे मिसेल जो है वो अटैच हो जाएगा, मतलब मिसेल मतलब पर्टिकुलर पहले टेल, उसके बाद हेड तो आएगा साथ में, दोनों साथ में होते लाइक दिस, ऐसा होगा। मतलब जितने भी स्टेन है अंदर कपड़े के ऊपर, हर एक के ऊपर ऐसे मान लो कि मिसेल फिट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मिसेल फिट होने के बाद वाटर, अब वाटर क्या करता है वो तो आपको पता ही है, वाटर तो पोलर है, तो वाटर किसको अट्रैक्ट करेगा? हेड को। चल निकल, हेड के साथ कौन आएगी? साथ में टेल, और टेल के साथ ये पूरा स्टेन जो है दैट विल रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ। ये सिंपल एप्लीकेशन है। एक्चुअली देखो, एक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, एक क्लॉथ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल का एक दाग जो है वो यहाँ पे है ऑयल, दैट इज नॉन पोलर, दैट इज नॉन पोलर, और यहाँ पे वाटर है, एंड वी नो वाटर इज पोलर, वाटर तो पोलर है। अब मुझे बताओ, वाटर कैन नॉट रिमूव ऑयल, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है उसमें मेन कंक्लूजन क्या है? वाटर जो है वो और ऑयल दोनों के बीच में एक मीडिएटर सेट होता है, and that is stearate ion, and which contain two part, philic and phobic. philic part है वो यहाँ पे रहता है head, और phobic है वो यहाँ पे रहता है, तो stearate ion बीच में आ गया, टेल है वो इसके कांटेक्ट में आ गई, हेड है वो इसके कांटेक्ट में, और फाइनली क्या होगा? वाटर है वो हेड को निकालेगा, अट्रैक्ट करेगा, इट मींस हेड के साथ टेल आएगी, टेल के साथ ऑयल आएगा, और फाइनली ये पूरा जो दाग है वो यहाँ से निकल जाएगा। फिनिश। दिस इज द एप्लीकेशन। क्लियर? You can take detergent also instead of soap. So in that case you have to change in formula CH3 CH211 instead of 16 and SO4 Na.
sodium lauryl sulfate. This is Na plus and this is minus. So Na plus, that is filling, and this part is important. This one is head and this one is tail. तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना. मैकेनिज्म ऑफ मिसेल विद एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट है तो आपको ये लेना पड़ेगा. क्लियर? तो ये भी पता होना चाहिए. सो क्लासिफिकेशन दैट इज कंप्लीटेड. कॉलर्ड जो है उसमें टोटल इतने क्वेश्चन है. अभी से मैं आपको बता दूं थोड़ा. फर्स्ट पॉइंट जो है कॉलॉइड की बात करें तो फर्स्ट पार्ट दैट इज क्लासिफिकेशन दैट इज कंप्लीटेड. ओके. सेकंड पार्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड. प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड टॉपिक क्यों पढ़ना है? फिलिक एंड फोबिक. फिलिक है वो तो घर पे बनता है, लेकिन फोबिक जो है वो मेथड से बनता है. तो कौन कौन सी मेथड है वो आपको पढ़नी पड़ेगी. दैट इज द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के बाद हम कॉलॉइड को क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे. दैट इज प्योरीफिकेशन मेथड. ये भी पता होना चाहिए. मतलब इम्प्योर निकालेंगे. प्योरीफिकेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे. वो भी एक टॉपिक पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज. और प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलॉइड को क्या करेंगे? स्टेबल में से अनस्टेबल. स्टेबल इन द सेंस पार्टिकल ऑफ फेज दैट इज इन सस्पेंडेड फॉर्म, फ्लोट करता है. एंड अनस्टेबल मींस ऑल पार्टिकल ऑफ फेज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म बिग पार्टिकल and its size become more than 1000. So what happens? More than 1000 means all particle will settle at the bottom, and that is suspension. And this phenomena is known as coagulation. This phenomena is known as coagulation. तो coagulation की कितनी methods है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. And all topic related with solid plus liquid. It means sol. मैंने कल आपको बताया था. कौन सा कॉलेज पढ़ना है? 8 में से सॉलिड प्लस लिक्विड एंड दैट इज सॉल्ट. और लास्ट में एक थियरी है इमल्शन के बारे में. इमल्शन मींस लिक्विड प्लस लिक्विड और लास्ट में एप्लीकेशन. ठीक है. तो कॉलेज के इतने लेक्चर्स हैं. वन बाय वन पढ़ेंगे. ए टॉपिक आपका हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया. अब प्रिपरेशन पढ़ेंगे एक दिन, वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, कोएगुलेशन, इमल्शन एंड एप्लीकेशन. 5 और 6 लेक्चर अभी भी हमें चाहिए कॉलॉइड के लिए. ठीक है. एंड कॉलॉइड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम ज्यादा नहीं कवर करते, वन बाय वन पढ़ेंगे. बहुत टाइम हमारे पास, डोंट वरी. ठीक है. और एग्जाम जो है फ्राइडे जो आप लिखते हो, ठीक है, सॉरी थर्सडे को लिखते हो. ठीक है. एग्जाम की बात अभी नहीं करते हम. एज यूजुअल पेपर आपको मिल जाता है, इन टाइम आपको लिखना है और उसको सबमिट भी कर देना है. लेकिन पीडीएफ आपको बनानी है, वो याद रखना. पीडीएफ आपको बनाना है तो चेकिंग थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है. थैंक यू वेरी वेरी मच. टुमारो वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड. थैंक यू very much. Okay, have a good day.